Okay, so there is no one else, so I'll start the class. So my name is Shika and I'm your NATI trainer on behalf of CECA today. So CECA provides all kind of services for Australian migration. They can help students with student visa for USA, UK, Canada, and New Zealand. They can also help students with admissions and change of course, and they can help students with visa extensions. And apart from this NATI coaching, there is a free PTA and IELTS class as well. They can also help students to get an overseas health insurance at the lowest price. Okay, now we'll begin the class. Hey Shika. Hey Akash, how was your exam? It was okay. The first dialogue was about what's it called? The second dialogue was about tenant and agent. So that one was fine. I understood most of that. Okay. The first dialogue was about courses in university. He wanted to change his courses and all that. Okay. So he was getting advice from the careers hub about his job and all. That one is a bit tricky, but then I think I managed to pull through. Okay. So let's see how it goes. And how were the words? Were they difficult, like the vocabs and everything? The second one was fine. The first one, here and there, they were like the course name was there, he was saying, but then besides that, it was just like you need to work hard, and you need to make sure like your decision before taking a decision, you need to work hard, and there's many options and this and that. So it's just normal stuff like that. Just some of the segments were a bit long, but it was okay though. It was not bad. Not Yeah. as bad as I thought, at least. Yeah, yes. So, You must have noticed that it is easier than the ones that we do in the class, correct? yes. It was a bit shorter than that anyway. So how long do you think the dialogues went on for, like each dialogue? 10, 15 minutes each, 15 minutes at least for each, Okay, and the sentences between 10 to 15. and Sentences were about 15 to 20, 15 to 20 words. oh, okay. Yeah. Okay, that's good. So how long do they take to give out the results nowadays? At the end of the meeting, it said, thank you for the exam and all that. And then they're like, please give us 4 to 6 weeks to give us your results via email. Okay, 4 to 6 weeks. So it's quite some time, but Yeah, it is what it is. yeah. And so you so you were able to take the test at any time between 2 to 5, correct? Yes, I took it around 2:45. Okay. So I just logged on. Then the only thing that takes long is the checks nowadays. Like they tell you to show that under the table, the room, and all that stuff, and then set your phone like 3 meters away from you so that we can see you. So And then like your webcam, take picture of ID and all that. oh, so And there then we was started. so there was no invigilator, you mean? So it was No. just It was just me. okay. Yeah. So they basically, I scanned the QR code on my app on the phone, and then we should use the back camera. That's why we place the phone like 3 meters away, so we can use the back camera and they can see us through the back camera. Oh, And all. So, so it's really good. Like you did both the dialogues. So how was your like? How many repeats did you take in each? one, Oh, well done. One. and then corrections and all I was saying and all that. Okay. Wow. Very good. So Uh, let's see. Hoping for the best. all the best for your marks. Thank you. I'll let you know once I get the marks. Yeah, you are. Are you there in the group? Yes, I am on the group. Okay. Yes. Yes. Yes, Please let us know, and then definitely. okay. Thanks a lot, Shika. No worries. I'll speak to you soon. See ya. Bye. Take care. Bye.
Okay, Parth. Yep. Okay, so do you know the like how the NATI exams um, are held these days? Like, what is the process? Yeah, a little bit because I didn't take a class for 3 weeks, but initially there was one guy who told me like how they are taking the exam. So you need a separate phone to keep it further from you, so they can check everything. You are not doing copying or you didn't post any materials underneath something. Okay, yeah. So you understood what Parth was saying because he had the exam today, Mhm. and so he was given a slot between 2 to 5, and then Okay. you can log in at any time between 2 to 5, and then take the exam. Mhm. Okay. So I think like as per what he said that the questions were not difficult and everything. So Mhm. I think I have seen you first time after because I have been taking class since I think 26th of May or something. And So maybe I dropped like last 4 weeks. I didn't take any class. After that, state of origin match. Okay. Okay. So I don't know when was the state of origin match. Okay. It was, I guess, on 26th or maybe 2nd of June. Okay. Yeah. So have you already booked your NATI classes? No, I was trying to book the exam, but then it was showing as everything is like there is no seat available, and one was nearly full. So I didn't get chance to book it. Okay. And you are based in Melbourne, correct? No, I'm in Sydney. Sydney. Okay. You know, worries. So we'll start with vocabs first part and then we'll move on to the dialogues. Okay. 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 So let's start with immigration. Okay. First one is ambassador. Uchayukt. Uchayukt, I'll have to check that because I have Rajdoot here. Let me have a look. Okay, no. Part, so it should not be Uchayukt, it should be Rajdoot. Okay. Okay, next one is asylum seeker. Hey, just a sec. Uh, Neeraj, no, Nirakshar. No. ओके आपको पता है यहाँ पे लोग आते हैं असालम सीख करने के लिए करेक्ट हाँ, तो असालम मतलब शरण शरणार. Okay, शरण. सो शरणार्थी या शरण तलाशने वाला Okay. ओके ब्रीच फिर, अम, तो कुछ चीजें तोड़ना, मतलब कोई भी रूल तोड़ना. हाँ जी तो उसको उल्लंघन या भंग ओके नेक्स्ट ब्रिजिंग वीजा अ, मध्यवर्ती वीजा. कार्यकारिणी ना. पार्टन वीजा पार्टनर वीजा. नहीं साथी वीजा.
पाटन, पाटन, प आकार ट एंड न, पाटन. Okay. So in Hindi, पाटन is जैसे एक चौड़ी सी कोई चीज होती है उसको कहते हैं. So bridge is sort of that. So पाटन visa. Okay. Citizenship, स्थायी निवास. स्थायी निवास ना, ना. वो परमानेंट रेसिडेंस होता है. परमानेंट. आप कौन से देश के नागरिक हो? So you are the citizen of India, correct? हाँ. So citizenship मतलब नागरिकता. Okay. Shit. और आपने सुना होगा कॉन्सुलेट कहते हैं. कॉन्सल, कॉन्सुलेट सलाहकार. उसको वाणिज्य कहते हैं, वाणिज्य दूत. स्पेलिंग कॉन्सल की पता चली या मैं चैट में लिख दूं? CONSULTANT. यस करेक्ट. ठीक है. बिकॉज लास्ट टाइम शायद मैंने सलाहकार लिखा था. अच्छा. कस्टम्स, कस्टम. चेक. जो जहाँ पे चेक करते हैं सारा कुछ चीज. हाँ. कहते क्या हो उसको. सीमा सुरक्षा तो नहीं, बॉर्डर प्रोटेक्शन वगैरह. सीमा, सीमा तक सही है. सीमा, सीमा. सीमा. अच्छा, कस्टम्स में क्या करते हैं? वो आपसे पैसे लेते हैं, करेक्ट? ना, मतलब सामान चेक करते हैं ना. सीमा. सीम कुछ. सीमा शुल्क विभाग. ओके. बिकॉज अगर आपका जहाँ भी जीएसटी आपको भरना होता है वहां पे आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है, करेक्ट? हाँ हाँ. और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कस्टम्स भी छोड़ सकते हो. इट इज करेक्ट, 100% करेक्ट. कस्टम्स हिंदी में. हाँ हाँ. ओके. तो उसमें अटकना नहीं है. अगर एग्जाम में आ गया सीधे कस्टम्स यूज कर सकते हो. ओके. डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, इसका तो पता ही होना चाहिए. सीमा और सीमा सुरक्षा और वाणी इमिग्रेशन એટલે सीमा सुरक्षा विभाग. आधा तो ठीक है. इमिग्रेशन. इमिग्रेशन. स्थान ना, स्थानांतर नहीं. इमिग्रेशन. अप्रवासन. अप्रवासन, सीमा सुरक्षा और अप्रवासन विभाग. वेरी गुड. ओके. डिपेंडेंट, निर्भर. मतलब आश्रित. हाँ, आश्रित. दोनों दोनों वर्ड मीनिंग सही, बिल्कुल सही. डिपोर्ट, वापस भेजना. सही. वापस भेज. निष्कासित मतलब. ना, निष्कासित तो रिजेक्ट. निर्वासन. ओके, निर्वासन. बट आपने वो भी सही कहा, वापस भेजना. उनको वापस भेज दिया गया इन इजी टर्म्स. बट ओके. निर्वासन इज द एग्जैक्ट वर्ड. डिटेंशन सेंटर, डिटेंशन सेंटर. सो डिटेंशन मतलब होता है हिरासत और सेंटर मतलब केंद्र. Okay.
क्योंकि अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में बहुत वो श्रीलंकन कपल का चल रहा था जिनको डिटेंशन सेंटर में रखा था. सो डिटेंशन सेंटर इज द हिरासत केंद्र. Okay. डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता. दोहरी नागरिकता. एम्बेसी, उच्चायुक्त. दूतावास. दूतावास. उच्चायुक्त भी होता है ना. होता है एम्बेसी का? लेट मी चेक. भारतीय उच्चायुक्त बोलते हैं ना इंडियन एम्बेसी को. दूतावास, राजदूत, राजदूतावास, कहीं भी उच्चायुक्त नहीं लिखा. ओके. ओके, लेट मी. क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था ना उसमें उच्चायुक्त बोला था. उच्चायुक्त हाँ. नहीं, उच्चायुक्त नहीं. राजदूत, राजदूतावास, दूतावास, ये लिखा है. Okay. कॉन्सुल और एम्बेसी दोनों सेम ही चीज होती है. ओके. फैमिली रीयूनियन, पारिवारिक पुनर्मिलन. यस. हेल्थ चेक, स्वास्थ्य परीक्षण. वेरी गुड. हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा. स्वास्थ्य. Shikha, can I ask you one thing? Do you also do the Nati Gujarati as well? Because like initially there was only Punjabi, Nepali, Hindi and Urdu, but I'm not sure like Sekha started in Nati Gujarati or not. Okay, I will confirm with the management team because I take only Hindi one, but I'll double check and then share. Are you in the group? Yeah, Okay, maybe I can share in the group. because initially it was not, but like I'm not sure about from last month, did they started or not? Okay, no worries. I'll just double check and then let you know in the group. Okay. Okay, cool. Illegal immigration गैर कानूनी प्रवासी. or pravasi. Yeah. Migration agents, Migration agent. Migration. Migration मतलब प्रवासन होगा ना. pravasan. Yes, correct. Migration. Agent that means अधिकारी. Pratinidhi, because agent is representing his client, correct? तो इसीलिए माइग्रेशन एजेंट्स मतलब प्रवास प्रतिनिधि. Okay. Okay, offshore processing. Processing means प्रक्रिया या फिर प्रसंस्करण. मतलब offshore. Okay. Sorry. कोई और आया है उसने भी आज एग्जाम दिया है. Just give me one moment. Sorry. Yeah. Hello. Hi, Synth. Hi, Synth. Can you hear me? Hello. Yeah, I can. Hi. Hi. How are you? Yeah, I'm good. Done finally. How was your exam? ठीक था. Like दो में से एक टफ था थोड़ा. सेकंड इजी था. अच्छा, क्या आया था आपको एग्जाम में? पहला वाला फ्यूनरल इंश्योरेंस था. Okay. और दूसरा हाउस इंस्पेक्शन था. अच्छा, तो किसमें आपको प्रॉब्लम हुई? फ्यूनरल इंस्पेक्शन के मतलब एक दो सेगमेंट्स थोड़े डिफिकल्ट थे. मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स थे.
तो मैंने 2 रिपीट लिया फर्स्ट में, तो आई एम अ बिट वरीड। पर अदरवाइज सेकंड तो काफी इजी था, तो फर्स्ट में अगर पास हो गई तो सेकंड से 63 कवर अप हो जाएगा लग रहा है। पर हाँ, फर्स्ट वाला आई होप रिपीट्स के लिए ज्यादा पेनल्टी ना दें। नहीं नहीं देंगे, जैसा कि अगर आपने जैसा इसमें किया था मॉक टेस्ट में, अगर इसी तरीके का आपने किया होगा 2 रिपीट में, आपके नंबर कहीं नहीं जा रहे। देखते हैं। तो बस बाकी तो ठीक था, मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट वोकैब भी नहीं था। सेंटेंस फॉर्मेशन ही ये था, तो मेरे जितना मैंने नोट्स में लिखा है वो मैं बाद में भेज दूंगी अगर आपको प्रैक्टिस करवाना है। हाँ जी प्लीज ज़रूर। और हाँ, बाकी तो ठीक ही था। अब क्या ही 2 हफ्ते वेट करके देखते हैं। ऑल द बेस्ट। अब एग्जाम रिजल्ट का वेट करते हैं। अभी आकाश ने भी बताया उसका भी एग्जाम सही हुआ। हाँ, एक में थोड़े सेगमेंट बढ़े थे, बट ओवरऑल आई थिंक वैसे ही आ रहा है, पहला वाला सेगमेंट थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है और आई थिंक सेकंड थोड़ा इजी है। और मतलब मेरे फ्रेंड्स जिसका हुआ था उनने भी सिमिलर आई थिंक पैटर्न देखा है, कि पहला वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सेकंड वाला कंपैरेटिवली इजी था। या मे बी आप रेडी हो जाते हो सेकंड के लिए, क्या पता। और हाँ, और मुझे सेटअप में एक्चुअली थोड़ा टाइम लग गया, तो अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो तो फिर मैं वीकेंड को आके एक बार सेटअप एक्सप्लेन कर सकती हूँ ऑनलाइन। थोड़ा मुझे तो 1 घंटा लगा टेस्ट शुरू करने के लिए, थोड़ा प्रॉब्लम होती प्लीज प्लीज जरूर जरूर आइए, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को भी पता चलेगा ना क्या है क्या नहीं। है। हाँ, मैं सैटरडे को ज्वाइन करके लाइक ऑनलाइन सेटअप बता दूंगी कैसे होता है। हाँ, थोड़ा मतलब वैसे बहुत हेल्पफुल है, लाइक उनका चैट सर्विस यूज कर लेना बहुत हेल्पफुल है वो लोग। पर मेरा लाइक कैमरा नहीं चल रहा था जो फोन का है, तो उन्होंने फिर वो डिसेबल कर दिया। तो हाँ, वैसे काफी ये करते हैं, हेल्प करते हैं। पर हाँ, जस्ट लाइक इट कैन टेक अ व्हाइल। अच्छा सही है। आई मुझे जहाँ तक लगता है आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आई हैव डाउट, जैसे कि मैंने कहते हैं ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। होपफुली जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट आए, आप दोनों का। हाँ, आप एक ग्रुप में होगे ना उसमें व्हाट्सएप में? हाँ हाँ, मैं ग्रुप पे हूँ। मैंने मैसेज नहीं पढ़ा, मैं ट्राई करी थी पहले आने को और वो पासवर्ड पूछ रहा था। फिर बाद में मैंने अभी मैं देखा कि आपने पासवर्ड डाला है, तो इसलिए मैंने अभी ज्वाइन किया। हाँ जी कोई नहीं। थैंक यू सो मच हाइसिंथ। नो प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर ऑल द हेल्प। नो वरीज एट ऑल। ठीक है, मैं सैटरडे को मिलती हूँ फिर। ओके चलो बाय, टेक केयर। ओके, थैंक्स अगेन। नो वरीज। ओके पार्थ। Yeah. ओके, पार्टनर इमिग्रेशन। साथी साथी प्रवासन अप्रवासन। अप्रवासन। ओके, ओके, इमिग्रेशन को क्या बोलते हैं? अप्रवासन माइग्रेशन को क्या बोलते हैं? ना, सॉरी, माइग्रेशन प्रवासन, इमिग्रेशन अप्रवासन। या करेक्ट, आपने पहले भी करेक्ट ही बोला था। ओके, परमानेंट रेसिडेंस। स्थायी निवासी। वेरी गुड। रेफ्यूजी। शरणार्थी। वेरी गुड। रेफ्यूजी एंड asylum seeker is similar. Skilled migration. स्किल मतलब ना, सूची भी सर नहीं ना, सूची प्रवासन। नहीं, सूची है। सूची that means list, right? या कुशल। कुशल कुशल प्रवासन। ओके, स्पॉन्सरशिप। किसी को स्पॉन्सर, मदद वीजा। प्रायोजन। प्रायोजन। ओके,
Unlawful stay. सीमा से ज्यादा रहना, मतलब गैर कानूनी निवास। Very good. गैर कानूनी रहना. Visa duration. वीजा की अवधि, वीजा अवधि। Very good. Visa effective date. वीजा शुरू होने की तारीख, मतलब इफेक्टिव, प्रभावी. ओके, प्रभावी। तो चलो अब डायलॉग करते हैं. Student visa application. Okay, ready? I'm playing the dialogue. Okay. This dialogue takes place between a student and a consultant about the student visa application. The dialogue begins now. Good afternoon, Ms. Shalu. My name is Katy Brown. Please take a seat. How may I help you today? शुभ सवार श्रीमती शालू, मैं कैटी ब्राउन हूँ। आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? Okay, और बीच में एक कृपया प्लीज टेक अ सीट. ओके, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। वेरी गुड. आप बैठिए, मतलब। हाँ, स्थान ग्रहण करना भी सही है. करेक्ट. ओके, नेक्स्ट. नमस्ते केटी, मैं यहाँ पर छात्र वीजा के बारे में पूछने आई हूँ। मैं अपने भाई और भाभी के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। मैं अभी आगंतुक वीजा पर हूँ और मैं छात्र वीजा के लिए आवेदन करना चाहती हूँ। Good, Katie. I am about to inquire about student visa. I am staying with my brother and sister-in-law, and right now I am on a visitor visa, and I'm here to talk about student visa. Talk about student application. उसने ये कहा ना कि और मैं छात्र वीजा के लिए आवेदन करना चाहती हूँ. So the application for student visa बोल सकते हैं कि सिर्फ application for student? So, and I would like to apply for a student visa. Okay. Okay, next. Before we guide you, could you please tell me your date of arrival along with your application ID so that I can verify a few details such as the visa grant date and duration of your current visa? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्या आप मुझे बता सकती है कि आपके वीजा की आने की तिथि क्या है और आपका वीजा की आपके वीजा किस दिन पे आपको लगे थे और आपके वीजा की अवधि क्या है? आप एक बार फिर से करना प्लीज. ओके, पहले हम आगे बढ़े, मैं क्या आपके बारे में कुछ आपसे कुछ माहिती ले सकती हूँ, जैसे कि आपके यहाँ पे आने की तिथि कौन सी थी, आपके आपका वीजा किस दिन पे लगा था और आपके वीजा की अवधि कितनी है?
आपने ट्रांसलेशन तो बहुत अच्छा किया है, बट आप बहुत आप नर्वस हो रहे हो क्या ट्रांसलेशन करते वक्त? नहीं, मैंने इतने टाइम से प्रैक्टिस नहीं की है, तो थोड़ी छूट गई है, तो याद नहीं रहता है, तो कैसे सेगमेंट बनाना है। अच्छा, नहीं तो क्योंकि आपने अच्छे से किया, आप में कोई इशू नहीं आ रही, आप घबराना नहीं, ठीक से धीरे धीरे भी बोलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट। बिल्कुल, मेरे आवेदन पहचान पत्र की संख्या है E 299 489 029। मैं 4 अप्रैल 2019 को पहुंची थी। मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के आशावादी और बहुसांस्कृतिक वातावरण में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि यह मेरे दिल को छू गया है। क्या? Okay, my identification number is E 29904EB, and I just arrived here on 4th of April 2019, and I am very much interested in here as it's. I'm very much aroused with the multiculturalism and progressive nature of Australia. थोड़ा नेक्स्ट लाइन गड़बड़ हो गया। ओके, मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के आशावादी और बहुसांस्कृतिक वातावरण में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि यह मेरे दिल को छू गई है। Okay. आशावादी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक। Okay. एंड बहुसांस्कृतिक? Multiculturalism. वेरी गुड। एंड वातावरण? Atmosphere. एनवायरमेंट। हाँ ठीक है, चलो। Okay. पर एक बार आप फिर से रिपीट करोगे, आप कैसे बोलते हो? क्योंकि मेरे को ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं नहीं लिख पाया था। ओके ठीक है। श्योर, माय एप्लीकेशन आईडी नंबर इज E 299489029। I arrived on 4th April 2019. I want to pursue my higher studies here, as the optimistic and multicultural environment of Australia has touched my heart. Okay. तो अगर इतना लंबा स्टेटमेंट है, तो एक आध छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है, तो कितना मार्क कटेंगे? काफी इंफॉर्मेशन कुछ भी देखो, पता नहीं आपको ये बात पता है या नहीं। सो नाटी में मैक्सिमम नंबर रहते हैं आपके एक्यूरेसी पे। दैट एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि अगर उन्होंने एक सेंटेंस में 10 वर्ड्स बोले हैं, तो 10 वर्ड्स के मीनिंग आपको सही के सही बताने हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर मिस किया, दैट्स फाइन, बट एक्यूरेसी, जैसे प्रेपोजिशन मिस कर दिया, द एंड, इसका अर्थ नहीं बोला, तो चलो ठीक है, बट जो मेन वर्ड्स है उनका आपको पूरा ट्रांसलेशन करना है। आप मिस करोगे तो बहुत उसमें ओके, आई थिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगी कि उनका क्राइटेरिया कैसे आता है। Okay. कि उसमें मेजर ओमिशंस ये सब जब वो मार्क्स देते हैं आपको, तो उनका एक समझ लो अल्फाबेट्स का सेट है। लाइक ए मींस ओमिशंस, सेकंड बी मींस इंसर्शन, ठीक है? तो वही है, ओमिशन करने से आपके बहुत मार्क्स कटेंगे। या तो आपने वर्ड्स नहीं बोला, या तो वर्ड्स के आपने गलत मार्क्स, गलत मीनिंग ये कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिसेबल है, डिसेबल को आपने विकार बोल दिया, तो डिसेबल को क्या बोलते हैं हम? डिसेबल, अशक्त, विकलांग। ओके। तो जैसे आपने जो वर्ड अभी बोला, अगर आप विकलांग की जगह वो वर्ड यूज करोगे, आपके बहुत ज्यादा नंबर कटेंगे। ओके ओके, तो इसीलिए एक्यूरेसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। थोड़े बहुत अगर आपकी एक्यूरेसी सही है, तो आप डायलॉग्स में अगर 2 रिपीट भी लेते हो तो इट्स फाइन, बट एक्यूरेसी ऑन 99% बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए।
Okay. So let's do the next segment. Sure. Thanks for letting me know. Now, you need to know that switching from one visa to the other, especially in this case, can be quite tricky at times. It might get rejected. ठीक है, जानकारी के लिए धन्यवाद। ये एक वीजा से दूसरे वीजा पे जाने के लिए थोड़ा मुश्किल है और आपको आपका वीजा निष्कर्ष कैंसिल भी हो सकता है। Okay, आपका वीजा रद्द भी हो सकता है। वेरी गुड, रद्द भी। और सेकंड सेंटेंस फिर से कर दीजिए प्लीज। ठीक है, जानकारी के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। सो और सॉरी वो वाला, अब आपको क्या जान लेना चाहिए? ओके, ठीक है, जानकारी के लिए धन्यवाद। आपको एक एक वीजा से दूसरे वीजा पे जाने पे आपको आपका वीजा रद्द भी हो सकता है और बस वही था। नहीं, ये देखो, इसमें आपका मेजर ओमिशंस हो गया, लाइक आपने मिस कर दिया बहुत सारे वर्ड्स। तो वो कहती है नाउ यू नीड टू नो दैट स्विचिंग फ्रॉम वन वीजा टू द अदर, स्पेशली इन दिस केस, कैन बी क्वाइट ट्रिकी एट टाइम्स। ठीक है, ओके तो नाउ को क्या बोलेंगे? अब ओके, आप, हाँ कैन आई अब एक वीजा से दूसरे वीजा पे जाने पे काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपका इट्स फिर से आपका ओमिशन हुआ। नाउ यू नीड टू नो, अच्छा बस आप इतने का करो, नाउ यू नीड टू नो। ओके, अब आपको ये जानना पड़ेगा कि एक वीजा से दूसरे वीजा पे जाने पे फिलहाल रिजेक्शन आ सकता, मतलब आपका वीजा रद्द हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपने फिर से, सॉरी बट आपने फिर से ओमिशन किया है और दो सेंटेंस को जोड़ दिया है। तो आपका वीजा रद्द हो सकता है या तीसरा सेंटेंस है। ठीक है, अब धीरे धीरे लेट्स ब्रेक द सेंटेंस और धीरे धीरे करते हैं। नाउ यू नीड टू नो, बस इतना ही करिए, इसके आगे बिल्कुल नहीं करना। नाउ यू नीड, अब आपको ये जानना है that switching from one visa to the other, कि एक वीजा से दूसरे वीजा पे जाने के बाद जाने के लिए, सही था पहले, ओके स्पेशली इन दिस केस, इट्स स्पेशल विशेष, विशेष सर इस केस में। इस जैसे केस बोला है ना, तो इस स्थिति में। ओके, कैन बी क्वाइट ट्रिकी एट टाइम्स, ये काफी मुश्किल हो सकता है। करेक्ट। ट्रिकी को अब आपको समझ में आया आपने कहाँ कहाँ मिस किया था? हाँ, ठीक है, तो पर इतना लंबा सेंटेंस होता है तो लिखने में आइडिया नहीं बैठता। इतना लंबा, प्रॉब्लम वो है। ये तो इतना लंबा तो आएगा ही, कम से कम 15 to 20 वर्ड्स। सुना था ना आपने, सबने कहा था 15 to 20 वर्ड्स के थे सेगमेंट्स। और क्योंकि ये इजी है, इस सेगमेंट में कोई भी ऐसे मुश्किल वर्ड्स नहीं है। ओके, अब आप फिर से एक बार नाउ से लेके टाइम्स तक बिल्कुल एक भी ओमिशन नहीं होनी चाहिए, आप कर दो। ओके, एक बार मैं सेंटेंस फिर से सुन लूं। ओके, नाउ यू नीड टू नो दैट स्विचिंग फ्रॉम वन वीजा टू द अदर, स्पेशली इन दिस केस, कैन बी क्वाइट ट्रिकी एट टाइम्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका एक वीजा से दूसरे वीजा पर जाने पर इस स्थिति में आपका वीजा
कैंसर आपका वीजा रद्द हो सकता है। रद्द वाली बात तो सेकंड सेंटेंस में है ही नहीं। आपका वीजा मतलब रिजेक्ट को क्या बोला था? आपका वीजा रिजेक्ट थर्ड सेंटेंस है। अभी आपने जैसे आपने क्या कहा, अब मैं आपको बता देती हूँ, उसमें ये नहीं कहा है कि मैं आपको बता देती हूँ, वो कह रही है अब आपको ये जानने की जरूरत है। नाउ यू नीड टू नो। ओके, अब आपको ये जानने की जरूरत है कि एक वीजा से दूसरे वीजा पर जाने के लिए इस स्थिति में आपका वीजा रद्द हो सकता है, नहीं राइट? यार, उसमें रद्द है ही नहीं, उसमें थर्ड सेंटेंस है रद्द। इसमें सिर्फ ये बोलता है कि कैन बी क्वाइट ट्रिकी, मतलब मुश्किल हो सकता है। काफी मुश्किल हो सकता है। या ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। जी हाँ, मुझे इसकी जानकारी है, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है। और तो और मेरी पढ़ाई में कोई गैप नहीं है। मैं हमेशा अच्छे अंकों से पास हुई हूँ। ओके, Okay, I know that, and I am bit optimistic about it. And I'm a bright student, and there is no gap in my study. And I'm having a good score in my study. ओके, फर्स्ट सेंटेंस आपने सही कहा। जी हाँ, मुझे इसकी जानकारी है, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है। I am bit optimistic. होपफुल। Okay, I am hopeful. और उसके बाद कहा और तो और, इसको आप क्या कहोगे? Furthermore, मोर ओवर। okay. और तो और मेरी पढ़ाई में हमेशा मेरी पढ़ाई में हमेशा अच्छे अंकों से पास हुई हूँ। मैं पढ़ाई में हमेशा अच्छे अंकों से पास हुई हूँ। Moreover, I have a good score during my schooling. या I passed my standards with a good score. या दिस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। Very well. Now, first of all, we need to get COE from an accredited university. Do you have any particular interests that you want to study? पहले हम शुरू करें, एक्रेडिटेड का मतलब क्या होता है? एक्रेडिटेड, Accredited. ओके, So, मान्यता। मान्यता प्राप्त। ओके ओके, चलो। ओके, ठीक है। हमें सबसे पहले मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपका सीओई लेना पड़ेगा। आगे। और आपको किसी विद्यालय में रुचि है, आपका किसी विद्यालय के प्रति प्रेफरेंस, प्राथमिकता, आपका किसी विद्यालय के प्रति लगा, आप किसी भी विद्यालय के प्रति सोच रहे हैं, प्राथमिकता, आई गेस। अच्छा, फिर से मैं थर्ड सेंटेंस करती हूँ। डू यू हैव एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट, इसका क्या बोलोगे? आपको किसी निश्चित ना। अच्छा, पर्टिकुलर का मतलब क्या होगा? पर्टिकुलर किसी भी चीज, मतलब स्पेसिफिक स्पेसिफिक इज, तो वो तो है ही, बट क्या बोलोगे आप? पर्टिकुलर मतलब कोई खास। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे पेन है आपके पास, बट आपके लिए एक खास एक पेन है जो खास है आपके लिए, दैट पर्टिकुलर पेन। सो खास। सो इसका क्या होगा? डू यू हैव एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट? आपको किसी भी खास चीज में रुचि है।
Do you have any particular interest that you want to study? ओके आपको किसी खास चीज खास जगह पे पढ़ने में रुचि है? उसने ये नहीं पूछा है कि आपको कहाँ पढ़ना है, उसने क्या कहा है? डू यू हैव एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट दैट यू वांट टू स्टडी? क्या आपकी कोई खास रुचि है जिसमें आप पढ़ाई करना चाहती हो? ओके ओके, क्योंकि उसने ये बिल्कुल नहीं पूछा है कि आप कहाँ पढ़ना चाहते हो, वो सिर्फ पूछिए रुचि है जो आप पढ़ना चाहते हो, लाइक विच फील्ड ऑफ स्टडी यू वांट टू टेक। ओके, ओके ओके चलो नेक्स्ट। मेरी लेखांकन में रुचि है और मेरी पिछली पढ़ाई भी लेखांकन में है। बाकी आप मुझे बताओ, क्योंकि आप मेलबर्न की एक जानी मानी शिक्षण सलाहकार हैं, जरूर आप मुझे अच्छी सलाह देंगी। ओके, पूरा मिला कि तोड़ के करें? okay let me try uh, I am interested in accounting and my last study was also in accounting and I heard you are a famous consultant in Melbourne. So can you just advise me? ओके, इसमें आपकी क्या कमी हो रही है? आपने इसका ट्रांसलेशन बिल्कुल सही किया, ठीक है। Mhm. आपने लास्ट के 2 सेंटेंस को मर्ज कर दिया, मर्जिंग नहीं करनी, मर्जिंग करोगे बहुत नंबर कटेंगे। Okay. आपने जब बोला यू आर अ वेरी फेमस कंसल्टेंट इन मेलबर्न, वहीं पे आपको रुक जाना है। उसके बाद थोड़ा पॉज लेके, लाइक जैसे एक सेंटेंस में होता है व्हेन यू एंड अ सेंटेंस, उसके बाद आपको बोलना है आई एम श्योर यू विल एडवाइज मी बेटर। Okay. ठीक है, तो ये हम्म, आप जब नोट्स लेते हो तो आपको हाँ, पता है कि आपका क्या इश्यू हो रहा है, 2 सेंटेंस आप मिक्स कर रहे हो, तो मेक श्योर okay. कि आप कुछ ऐसा करो जिससे आपको पता चले कि दिस सेंटेंस इज फिनिशिंग हियर, Mhm. नाउ आई डोंट हैव टू मर्ज द अदर वर्ड इन दिस सेंटेंस। ठीक है, Okay. Okay. वो आप क्योंकि बेसिकली मैं सारा मेरी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ना, तो फिर उसकी वजह से आइडिया नहीं रहता कि भाई अलग अलग क्या है। अच्छा, हाँ हो सकता है, बट वही आपको देखना होगा कि आपके लिए क्या बेटर है, कैसे आप हम्म, लिखोगे कि आपको सही से हो, क्योंकि अगर आपने एक्यूरेट नहीं हुआ, एक्यूरेसी इससे बहुत हैम्पर होती है कि आपने 2 सेंटेंसेस को मिक्स कर दिया, इट्स लाइक मार्क्स काफी काफी कट जाएंगे। हम्म, ठीक है, ओके चलो। okay. Thank you so much for the appreciation. We will get you an offer letter from the Holmes Institute. However, you should know that the future of accountancy in Australia is very uncertain. It is hard to get permanent residency in that occupation. Are you an accountant too? ना IT? ना engineering electrical. Oh, nice. Yeah. Okay. अब चलो अभी एक अकाउंटेंसी का। ओके ठीक है, हम आपके लिए होम्स से आप एडमिशन तो बोलिए। पहले ही आपको मैं बता दूं, आपने ओमिशन किया है फर्स्ट सेंटेंस। फिर से प्ले करूं एक बार? हाँ Thank you so much for the appreciation. We will get you an offer letter from the Holmes Institute. However, you should know that the future of accountancy in Australia is very uncertain. It is hard to get permanent residency in that occupation. चलो अब करो। आ, आपके आपसे के हम आपसे ना, आप आपकी हेल्प के लिए आपकी मदद के लिए धन्यवाद ना।
एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? अगर आपकी कोई बड़ाई करे, बड़ाई इज लाइक एप्रिसिएशन, करेक्ट? तो क्या कहोगे? आपकी मदद। नहीं, थोड़ा थोड़ी। एप्रिसिएशन मतलब आइडिया नहीं। प्रशंसा। ओके। थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। अब करो इसको। ओके। आप आपकी आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। हमने आपका हमने आपका नामांकन हम आपका नामांकन होम्स विद्यालय से ले लेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि लेखांकन का भविष्य यहाँ पर काफी अनिश्चित है। पर मुझे लगता है कि आपको स्थायी निवास लेने में काफी दिक्कतें आ सकती है। ओके। पहली चीज कि उसने बिल्कुल भी ये नहीं कहा पर मुझे लगता है कि आपको अस्थायी निवास, उसने सिर्फ यही कहा इट्स हार्ड टू गेट परमानेंट रेसिडेंस इन दैट ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यवसाय। व्यवसाय। तो उस व्यवसाय में, इस व्यवसाय में स्थायी निवास ले पाना कठिन है। ओके। इस व्यवसाय में स्थायी निवास ले पाना काफी कठिन है। और दूसरी चीज वो कहते हैं वी विल गेट यू एन ऑफर लेटर। सो ऑफर लेटर होगा प्रस्ताव पत्र। ऑफर क्या होता है कि मैं आपके सामने कुछ ऑफर रख रहा हूँ, मैं आपके सामने प्रस्ताव रख रहा हूँ, करेक्ट? हाँ। लेटर इज पत्र। ओके। प्रस्ताव पत्र। एक बार ये डायलॉग होने के बाद आप सिर्फ इसकी मेन वोकैबुलरी मेरे को बोलेंगे हाँ जी। तो मेरे को थोड़ी आइडिया रह जाएगा ओके कि ओके। भाई क्या क्या है क्या नहीं है। हाँ जरूर। जी हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। मैं अब दुविधा में हूँ। कृपया क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं छात्र वीजा पर कितने घंटे काम कर सकती हूँ? ओके, चलो कर दो आप। Okay, yes, I heard about it and I am in a confusion. Can you advise me on my student visa how many hours I can work on? या ओके, सही है। चलो अब वर्ड मीनिंग्स करते हैं। Okay. ओके। एड, AID, एड मदद। मदद या सहायता, करेक्ट। असाइलम सीकर, uh, अस- शरणार्थी। यस। मल्टीकल्चरलिज्म, uh, ब- बहु uh, बहु नागरिक नहीं, नागरिकता ना बहुसंस्कृतिवाद। वेरी बहुसंस्कृतिवाद। वेरी गुड। थोड़ी हिंदी में मेरे को इतना आता नहीं है तो थोड़ा उसके हिसाब से। अच्छा कोई बात नहीं। एक्चुअली इसमें मैं आपको डायलॉग का देख के बताती हूँ कौन कौन से वर्ड्स इसमें नहीं है। ओके, विजिटर वीजा का तो आपको पता है, करेक्ट? हाँ, प्रवासी वीजा। नहीं, विजिटर वीजा अरे आगंतुक। आगंतुक वीजा। या अप्लाई, हाँ, अप्लाई को हिंदी में क्या कहते हैं? अप्लाई
आवेदन करना. आवेदन. Yes. Okay. Arrival. आगमन. Okay. Application ID. Application. Application ID. Application. एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन मतलब आप अवधारण आवेदन करना. यस. सो एप्लीकेशन का मतलब है आवेदन. आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन कार्ड, मतलब पहचान पत्र. सो Okay. एप्लीकेशन आईडी इज आवेदन पहचान पत्र. ओके. एंड ड्यूरेशन. समय अवधि. वेरी गुड. वैसे अवधि एकदम सही है, मतलब. ओके. नंबर. संख्या. संख्या. आशावादी. ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक. हायर स्टडीज. उच्चतर शिक्षण. या उच्च शिक्षा. ओके. स्विचिंग. बदलना. गुड. ओके. स्पेशली. खास तौर पे. यस. खास तौर पे या विशेष. ट्रिकी. ट्रिक. का तो आना चाहिए, हमने 4-5 बार करा है इसका. ट्रिक थोड़ा जटिल. जटिल या मुश्किल. मुश्किल. बट जटिल भी बोल सकते हैं ना. हाँ, जटिल बोल सकते हैं, बट जटिल थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है. बट अगर आपको याद आता है तो परफेक्ट, जटिल भी सही है. ऐसा तो याद आ जाएगा, पूरे डायलॉग के टाइम पे ही भूल जाऊंगा. अच्छा. अवेयर. जानकारी होना. वेरी गुड. अच्छा. उम्मीद. उम्मीद. मतलब होपफुल. होपफुल. यस. होपफुल. और तो और. Last was मोर ओवर. moreover. Accredited. लेखन ना. ओके. कभी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें एक्रेडिटेड रहती हैं. एक्रेडिटेड, अगर जिसका एक्रेडिशन है, दैट मीन्स वी नो कि वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज बहुत अच्छे हैं. एक्रेडिशन मतलब होता है मान्यता प्राप्त. एक्रेडिटेड, मान्यता प्राप्त. मान्यता प्राप्त. ओके. पर्टिकुलर. खास तौर पे. खास. खास. इंटरेस्ट. रुचि. यस. रुचि.
Okay, consultants. Consultant. सलाहकार. सलाहकार. Okay. Appreciation. प्रशंसा. प्रशंसा. Offer letter. ऑफर लेटर को ऑफर लेटर ही बोल सकते हैं ना कि ना ऑफर पत्र बोला था ना. ऑफर लेटर नहीं लिखा. प्रस्ताव पत्र. प्रस्ताव पत्र. Okay. दुविधा. दुविधा मतलब कंफ्यूजन. या कंफ्यूजन या डिलेमा. ओके चलो ये हो गया. वी शुड डू नेक्स्ट डायलॉग. Okay, ready? This dialogue takes place between two ladies about gym membership. The dialogue begins now. Good morning. Imdad's Fitness 24/7. Jaden here. How can I help you? शुभ सवार. मैं फिट सशक्तिकरण 24/7 से जेडन बोल रहा हूँ. फिटनेस को आप फिटनेस भी बोल सकते हो. ओके. शुभ सवार. फिटनेस 24/7 में से जेडन बोल रहा हूँ. जेडन बात कर रहा हूँ. ओके ये फिर से आपका 2 सेंटेंस कंबाइन हुआ और 1 सेंटेंस गॉन. ओके एक बार रिपीट करो तो. ओके. Begins now. Good morning. Imdad's Fitness 24/7. Jaden here. How can I help you? ओके एक चीज बताओ इसमें कितने सेंटेंस हैं. गुड मॉर्निंग मतलब शुभ सवार. इम्बार्ड फिटनेस सेंटर 24/7 है. 7 फिर मैं जेडन बोल रहा हूँ. आप कैसे हो. नहीं अच्छा वैसे ये आपने सही कहा. इसमें 4 सेंटेंस हैं. शॉर्ट सेंटेंसेस है बट 4 हैं. गुड मॉर्निंग को करो हिंदी में. शुभ प्रभात या हेलो भी बोल सकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम में शिप्रा जी ने हेलो ही बोला था सबने. हाँ नमस्ते. नमस्ते बोल ओके. सकते. एमदाद्स फिटनेस 24/7 मतलब ये फिटनेस का नाम है. क्या नाम है. अहमदाद फिटनेस 24/7. हाँ उसके बाद मैं जेडन बात कर रही हूँ. हाँ और मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ. यस हाउ मे आई हेल्प यू राइट. यस. चलो नेक्स्ट. वास्तव में मैं आपसे जानकारी चाहती हूँ कि अगर मैं आपकी व्यायामशाला में नामांकन करवाना चाहूँ तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी. मेरे मित्र ने मुझे यहाँ आने की सलाह दी थी.
ओके, इससे पहले कि आप सेंटेंस शुरू करो, बताओ इसमें कितने सेंटेंसेस हैं? 4. इसमें 2 ही सेंटेंस है। Okay. In real, I want to know if I join this fitness center. If I register for this fitness center, what I have to do? ओके, यहाँ पे फिर से आपका वही हो रहा है। ये देखो, वास्तव में, एक्चुअली, उसके आगे आप करना, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, आप देखो कि कितना लंबा वो पॉज ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमा और पॉज जब भी यूज होता है सेंटेंस में, आपको वो पता चल जाता है, करेक्ट? तो इसमें आप सेंटेंसेस में, क्योंकि अभी आपने बुक नहीं किया, अभी आपके पास टाइम है, आप कोशिश करो ये देखने का कि सेंटेंसेस कहाँ, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये खत्म हो रहा है या जस्ट विथ अ कॉमा चालू है, ठीक है। अब मैं फिर से ये प्ले करती हूँ, एक बार आप आराम से, कोई अगर आप फर्स्ट हाफ भी एकदम करेक्टली दे देते हो, दैट्स फाइन, ठीक है। ओके, तो अभी मैं फिर से प्ले करती हूँ। वास्तव में मैं आपसे जानकारी चाहती हूँ कि अगर मैं आपकी व्यायामशाला में नामांकन करवाना चाहूँ तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी। मेरे मित्र ने मुझे यहाँ आने की सलाह दी थी। I want some information. I want to register in your fitness center. My friend recommended me about this center. ओके, आपका इसमें मिस हो गया। देखो, वास्तव में मैं आपसे जानकारी चाहती हूँ। एक्चुअली आई वांटेड टू टेक सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, कि अगर मैं आपकी व्यायामशाला में नामांकन करवाना चाहूँ, इसका क्या होगा, सिर्फ इतने का ही बताना। If I want to register for your if I exercise center. अच्छा, ये बताओ, जब आप कॉलेज में यहाँ पे आपने एडमिशन लिया होगा, तो नामांकन होता है स्टार्टिंग में, एनरोल आपने किया होगा ना सब्जेक्ट्स में, दैट इज नामांकन। ओके। रजिस्ट्रेशन इज पंजीकरण, करेक्ट? ओके। तो नामांकन मतलब एनरोल। ओके। ओके, मैं फिर से प्ले करूं, डू यू वांट टू डू इट अगेन? हाँ, एक बार। And what is the Hindi for, sorry, what is the English for प्रक्रिया? Process. Yeah, process or procedure. चलो मैं फिर से play। वास्तव में मैं आपसे जानकारी चाहती हूँ कि अगर मैं आपकी व्यायामशाला में नामांकन करवाना चाहूँ तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी। मेरे मित्र ने मुझे यहाँ आने की सलाह दी थी। Information on how to register, enroll into this fitness center. My friend advised me to join here. To come to you. To come to you. अब देखो, इसमें आपने नोटिस किया होगा, जो इसके सेंटेंस का जो फ्लो था वो नॉन स्टॉप था, उसमें कहीं वो रुकी नहीं, वो सीधे बोलती है वास्तव में मैं आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ, शी जस्ट वेंट ऑन, करेक्ट? बट पिछले सेंटेंस में वो लड़की जब बोल रही थी तो शी वाज लाइक गुड मॉर्निंग, देन शी टुक अ पॉज, फिर कहती है अहमदाबाद फिटनेस हियर, फिर पॉज लेके फिर वो कहती है। इससे आपको पता चलेगा कितने सेंटेंस है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट। Sure, let me help you with that. We have a yearly and a weekly membership, which obviously will be directly debited from your account. ओके, पहले इतना ही करो क्योंकि बड़ा सेगमेंट है, बट आई वांट यू टू गेट 99%, 100% एक्यूरेसी। चलो। ओके,
ठीक है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर वार्षिक और वीक साप्ताहिक। और साप्ताहिक दो फी है जो सीधे आपके अकाउंट से कटेगी, जिसका शुल्क सीधे आपके अकाउंट से कटेगा। सही है, बट इसमें एक आपका मिस हो गया। सब चीज सही था। हमारे हमारे पास वार्षिक और साप्ताहिक सदस्यता है, मेंबरशिप। मेंबरशिप का क्या हो गया? सदस्यता। ओके। बट बाकी आपका ये सही था। और स्टार्टिंग में आप जरूर मैं आपकी मदद करती हूँ, वो आपने गायब कर दिया। ओके। चलो नेक्स्ट। That will be $192 monthly for 1 year membership and $45 for the weekly package. चलो इतना करो। ओके। ठीक है, वो 192 रुपये प्रति सप्ताह प्रति महीना 1 साल के लिए, और 45 प्रति साप्ताहिक होगा। ओके, ये ठीक है। चलो नेक्स्ट। We do have a per day as well, which won't be that cost effective, honestly. ओके, हमारे पास हर दिन का भी है, मगर वो इतना शुल्क प्रभावी नहीं होगा। इफेक्टिव मतलब प्रभावी होता है, करेक्ट है, बट किफायती होता है। ओके। ओके, हमारे पास प्रतिदिन का भी है, मगर उसका शुल्क इतना किफायती नहीं होगा। ओके, ठीक है। एक चीज देखो, जैसे वी डू हैव अ पर डे एज वेल विच वोंट बी दैट कॉस्ट इफेक्टिव ऑनेस्टली। ठीक है, तो अगर कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस है, करेक्ट, तो उसको अगर आप पीछे से उठा के शुरू करोगे, तो जैसे कह रहा है ना ऑनेस्टली एंड में, तो अगर आप इससे सेंटेंस शुरू करो, सच बताऊं तो हमारे पास हर दिन का भी है, बट वो इतना किफायती नहीं होगा। ओके। ठीक है, ओके, सच बताऊं मतलब कभी भी पीछे से भी शुरू। हाँ, क्योंकि ओके, ऑनेस्ट। हिंदी और इंग्लिश में ऐसे रहता है कि आपको देखना है आपके लिए क्या बेटर है। ठीक है, आपको कैसे इजी हो रहा है, क्योंकि कभी कभी हम डायरेक्टली अगर इंग्लिश का जैसे सेंटेंस फ्रेम है सेम वैसे ही उठा के हिंदी में कर रहे हैं, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में मे बी मुश्किल हो सकती है। बट आप नोटिस करना, अगर आप एंड का उठा के शुरू करोगे तो मे बी इजी हो जाएगा। एटलीस्ट फॉर इंग्लिश टू हिंदी के लिए तो इजी होगा। आप कोशिश करो एक दो बार, फिर आप देखना कि क्या है क्या नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज गुड वर्किंग फॉर यू। ओके। चलो, आई विल प्ले द नेक्स्ट। ठीक है, वार्षिक प्रस्ताव मुझे सही लगा। क्या इसमें कोई सीमा भी है? उदाहरण के लिए, मैं सिर्फ कुछ दिनों और कुछ घंटों के लिए ही व्यायाम कर सकती हूँ, या अगर मैं कुछ महीनों के लिए नहीं आ सकी, तो क्या मेरी सदस्यता रद्द हो सकती है? ओके, अब यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश है, यहाँ पे आप सीधे ट्रांसलेट कर सकते हो, पर जहाँ इंग्लिश टू हिंदी करना है वहाँ पे आप पीछे उठा के ट्राई करना। ठीक है, ओके। ईयरली Okay, yearly I can do it. For example, can I do for like a particular day and particular time? And if I'm not doing for like a few months, then will my membership gonna be expired or terminated?
इसमें आपका बहुत डिस्टॉर्शन, बहुत एक्यूरेसी गया। ओके, अब मैं शॉर्ट सेगमेंट प्ले कर रही हूँ, आप सिर्फ उतना ही उतना करना। ओके, हम्म, घबराओ नहीं, आपको मीनिंग्स तो पता ही है। हम्म। ठीक है, वार्षिक प्रस्ताव मुझे सही लगा। इसका करो। Okay. Okay, I like a yearly subscription. उसने सब्सक्रिप्शन कहा है या प्रस्ताव कहा है? प्रस्ताव। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके सामने कोई प्रस्ताव रखता है तो प्रस्ताव पत्र। Offer. यस। Okay, I like yearly offer. हाँ, नेक्स्ट। क्या इसमें कोई सीमा भी है? उदाहरण के लिए, मैं सिर्फ कुछ दिनों और कुछ घंटों के लिए ही व्यायाम कर सकती हूँ, या अगर मैं कुछ महीनों के लिए नहीं आ सकी तो क्या मेरी सदस्यता रद्द हो सकती है? पूरा आया या फिर से प्ले करो? एक बार फिर से ट्राई करो। ओके, इसको मैं सेंटेंस को तोड़ के ठीक है, वार्षिक प्रस्ताव मुझे सही लगा। क्या इसमें कोई सीमा भी है? उदाहरण के लिए, मैं सिर्फ कुछ दिनों और कुछ घंटों के लिए ही व्यायाम कर सकती हूँ। ओके, यहाँ तक का करो। Okay, I like a yearly offer and I can do only a few days and few hours of exercise. ओके, इसमें आप I can do only for few days and few hours ओके, for इसमें that. मिसिंग हो गया, एक सेंटेंस आपने गायब कर दिया है। बट उसने बोला ना, दिस ईयरली ऑफर सीम्स फाइन टू मी, उसके बाद वो बोलती है क्या इसमें कोई सीमा भी है? व्हाट Okay. इज Do it have any limits as well? डज इट हैव एनी लिमिट्स एज वेल? Okay. ओके, उसके बाद बोलती है उदाहरण के लिए मैं सिर्फ कुछ दिनों और कुछ घंटों के लिए ही व्यायाम कर सकती हूँ। Okay. For example, I can do only for few days and few hours for exercise. या So, अगर मैं कुछ महीनों के लिए नहीं आ सकी तो क्या मेरी सदस्यता रद्द हो सकती है? and if I won't be able to come for a few months, then my membership can be cancelled or suspended. कैंसल्ड बोलना सही है। चलो नेक्स्ट। या अगर मैं कुछ महीनों के लिए नहीं आ सकी तो क्या मेरी सदस्यता रद्द हो सकती है? Well, you see, that's the best package, and it gives access to everything, including perks, like you can come 7 days a week, 24/7, anytime in the year. And it won't be cancelled in the middle, even if you don't attend the gym. चलो ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा विकल्प है जिसमें आप 7 दिन 24 घंटों में से कभी भी यहाँ पर आ सकती है, और अगर आप कुछ समय के लिए नहीं भी आते तो भी आपकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। वेरी गुड। पर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर पूरा वर्ड टू वर्ड ना जाए और बेसिक मीनिंग ही समझा दे तो भी नहीं चल सकता? नहीं, आपको वर्ड टू वर्ड ही जाना है। ओके। क्योंकि बेसिक मीनिंग अगर आप समझा रहे हो दैट मीन्स आप वर्ड के मीनिंग उनको बता नहीं रहे हो, दैट मीन्स आप जो सेंटेंस कर रहे हो वो एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेसी का मतलब ही यही होता है, जितने वर्ड्स दिए हैं उनके आपको सारे वर्ड्स के आपको मीनिंग देने हैं उनको।
तो इसीलिए अगर आपको सोचोगे कि मैं सिर्फ मीनिंग समझा देता हूँ और मेरे को मार्क्स मिलेंगे, नहीं, उसमें बहुत आपके मार्क्स कट जाएंगे इनफैक्ट। Okay. कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो क्योंकि इट्स नॉट डिफिकल्ट। सारे बच्चों की यही हालत होती है इन द बिगनिंग, पता चलता, बट मेक श्योर कि आप थोड़ा टाइम दो, एटलीस्ट हाफ एन आवर, और हिंदी में बात कर सकते हो तो हिंदी में बात करो, थोड़ा बहुत हो जाएगा क्योंकि आपको Okay. मीनिंग में तो उतना इशू नहीं है। ओनली थिंग इज दैट आपको सेंटेंस का आप जो कि आप कह रहे हो कि वैसे कर सकता हूँ, आप वैसे ही करते हो, वैसे नहीं करना है आपको, हर एक वर्ड का उनको मीनिंग बताना है। ओके, Okay. चलो नेक्स्ट। तब तो यह बहुत ही अच्छा है क्योंकि अगले महीने मुझे अपने भाई की शादी में जाना है। दूसरी बात, क्या मैं यहाँ अपने आप व्यायाम करूंगी या फिर मुझे कोई निर्देश देगा कि क्या करना है, क्योंकि इसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता। ओके, चलो। That's very good because in next year my brother is I have my brother's wedding and just one more question. Do I need to do it by myself or can someone gonna guide me? और कोई सहायता और गाइड की जगह पे और someone can help me or advise me. ओके, इसमें आपका एक सेंटेंस गायब हो गया, बट इम्प्रूवमेंट, पहले जो आपने सेगमेंट किया है उससे इसमें काफी इम्प्रूवमेंट है। आपने सारे वर्ड्स बोले एक्सेप्ट फॉर आप व्यायाम करोगी, या फिर सिर्फ व्यायाम का आपने वर्ड छोड़ दिया, मतलब जिम होना चाहिए या पर वो तो ऐसा बोले ना कि भाई मैं एक्सरसाइज अपने हिसाब से करूंगी या कोई मुझे एडवाइस करेगा या गाइड करेगा। तो व्यायाम का तो एक्सरसाइज होगा कि ओ फिर ये कुछ और होगा। सॉरी सॉरी माय बैड। हाँ, व्यायाम इज वर्कआउट और एक्सरसाइज, करेक्ट। हाँ, सिर्फ आपने वो लास्ट सेंटेंस छोड़ा है क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। हम्म। चलो अच्छा, वेरी गुड, नेक्स्ट। Lovely. You can pay now or start later or pay when you come back. And about the instructor, if you want to have one personal instructor, you will have to pay extra monthly. Are you looking to lose weight or build muscles? हाँ, कुछ आप अरे पूछो। यार आधे से ही छूट गया। अच्छा, छूट गया, चलो मैं फिर से प्ले कर दूँ। बढ़िया। Lovely. You can pay now or start later or pay when you come back. And about the instructor, if you want to have one personal instructor, you will have to pay extra monthly. Are you looking to lose weight or build muscles? बढ़िया। आप अभी अभी भी भुगतान कर सकती हो या बाद में भी भुगतान कर सकती हो। और आपने जो सहायता के लिए पूछा है उसके उसके आपको अलग से भुगतान करना पड़ेगा। क्या आप सिर्फ अपने पेट की चर्बी घटाना चाहती हो या फिर अ, आप अपने आकार के भी ऊपर ध्यान दें। ओके, इसमें फिर से थोड़ा मिसिंग हो गया। ओके, पहला आपने सही करा, आप अभी भुगतान कर सकती हैं या बाद में भुगतान कर सकती हैं। उसके बाद उसने कहा व्हेन यू कम बैक, जब आप वापस आएंगी, ये आपका मिसिंग हो गया, बट इसके अलावा आपका परफेक्ट था ट्रांसलेशन। उसके बाद वो कहती है एंड अबाउट द इंस्ट्रक्टर, इफ यू वांट टू हैव वन पर्सनल इंस्ट्रक्टर, इसका करो आप। ओके।
आप जो सहायक की बात कर रहे हो उसके लिए आपको अलग से भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ये तो मैंने आपको बोला ही नहीं कि इसका आपको ट्रांसलेट करना, आपको सिर्फ इतने का ही करना है। And about the instructor, if you want to have one personal instructor, सिर्फ आप इसी का करो बस। और आपने जैसे कहा कि आपको एक सहायक के बारे में, तो आपको एक अलग से सहायक मिल पाएगा। जी, नहीं, ओके। ओके ठीक है, मैं बता रही हूँ, वेट। ओके, एंड अबाउट द इंस्ट्रक्टर, और प्रशिक्षक के बारे में, अगर आपको एक निजी प्रशिक्षक चाहिए, ये इसका मतलब होगा, क्योंकि वो क्या कह रही है, एंड अबाउट द इंस्ट्रक्टर, और वह प्रशिक्षक के बारे में। अगर आपको एक वन पर्सनल इंस्ट्रक्टर, एक निजी प्रशिक्षक चाहिए, उसके बाद ये आता है, यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा मंथली। ओके, और आपके एक प्रशिक्षक के बारे में, अगर आपको एक निजी प्रशिक्षक चाहिए तो आपको उसका अलग से प्रति माह भुगतान करना पड़ेगा। गुड, ये सही था। आर यू लुकिंग टू लूज वेट और बिल्ड मसल्स? आप यहाँ पे अपना वजन घटाना चाहती है या आपके मांसपेशियां मांसपेशियां बनाना चाहते हैं? यस, मांसपेशियां, मसल इज मांसपेशियां, मांसपेशियां बनाना चाहती हैं। मसल मांसपेशियां। चलो नेक्स्ट, ये भी बड़ा है तो मैं इसका तोड़ तोड़ के ये प्ले करूंगी। ओके, ठीक है, यह व्यक्तिगत प्रशिक्षक मुझे काफी महंगा लगता है और मेरे पति मुझे कहते हैं कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ और मेरे पेट के पास से मेरा मांस लटक गया है। चलो इतने का करो। Okay, this personal trainer seems a bit expensive, and my husband is telling me that I am a bit fat. I'm a bit healthy, and my body fat around my belly is a bit fallen up. अच्छा, आपने फैट को मोटी को फैट कहा था, तो उसका वही होगा, फैट ही होगा, आपने उसको चेंज नहीं करना है। Okay. तो वो पेट के पास से बढ़ गया है, तो it's my belly fat is increased around my stomach. मेरे पेट के पास से मेरा मांस क्या होता है? Meat. और फ्लैश, Okay. या आप ऐसे ही बोल सकते हो, आई हैव स्किन फ्लैपिंग नियर माई स्टमक। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप फैट नियर माई स्टमक ऐसे। नेक्स्ट, यहाँ तक कि वो मुझे रोटी भी नहीं खाने देते, कहते हैं सिर्फ सलाद ही खाओ। Till then, he is telling me not to eat not to eat roti. He is just only giving me salads to eat.
ना खाने में तो बोला नहीं. He is not allowing me to eat roti and giving me only salads. Okay, he does not give her. He only let her eat salads. Okay. क्योंकि वो कहती है ना, यहाँ तक कि वो मुझे रोटी भी नहीं खाने देते. He doesn't even let me have chapatis. कहते हैं सिर्फ सैलड ही खा. It says only have salads. Mhm. चलो next. That's really funny. For weight loss, we have group aerobics class and individual sessions with an instructor. Plus, as a bonus, you get a diet chart made from a qualified dietitian. ये बहुत ही मजाकिया है. हमारे पास वजन घटाने के लिए एरोबिक क्लास भी है जो आपकी वजन घटाने में सहायता करेगा. ना यार तो लास्ट ओके, चलो मैं फिर से प्ले करती हूँ. That's really funny. For weight loss, we have group aerobics class and individual sessions with an instructor. Plus, as a bonus, you get a diet chart made from a qualified dietitian. ओके, ये बहुत मजाकिया है. वजन उतारने के लिए हमारे पास एरोबिक क्लास भी है और एक निजी या तो फिर व्यक्तिगत आपके लिए एक व्यक्तिगत आहार सूची हमारे प्रशिक्षक के द्वारा बनाई गई आपको दी जाएगी. उसने कहीं भी पर्सनल तो नहीं कहा है, फिर आपने पर्सनल व्यक्तिगत क्यों कहा? नहीं, एरोबिक्स क्लास और पर्सनल कुछ बोला था ना. हाँ, वो कहा था, बट आपने इसके साथ उसको जोड़ दिया डाइट चार्ट के लिए. उसने नहीं, उसमें लास्ट में भी ऐसा था ना कि आपके वजन के ध्यान मतलब आपके लिए एक व्यक्तिगत सूची भी बना के देगा डाइट चार्ट की. अच्छा, वो कहता है प्लस एज अ बोनस यू गेट अ डाइट चार्ट मेड फ्रॉम अ क्वालिफाइड डाइटिशियन. क्वालिफाइड को क्या कहेंगे? क्वालिफाइड स्वीकृत. नहीं, वो तो एक्सेप्टेड होता है. विशेषज्ञ. ओके, क्वालिफाइड. क्वालिफाइड डाइटिशियन मतलब योग्य. सॉरी, क्वालिफाइड इज योग्य. योग्य आहार विशेषज्ञ. आहार तो आहार विशेषज्ञ इज डाइटिशियन एंड क्वालिफाइड इज योग्य. ओके, सो आपके वजन के लिए आपकी डाइट मतलब डाइट ही बोल सकते हैं ना. आपको एक योग्य आहार विशेषज्ञ से एक आहार कहेंगे डाइट को, क्योंकि ओके, डाइटिशियन हम आहार विशेषज्ञ कह रहे हैं ना, हम्म, तो डाइट मतलब आहार. ओके, आपके आहार के लिए हमारे यहाँ से एक आहार सूची दी जाएगी जो हमारे यहाँ से मान्यता प्राप्त आहार विशेषज्ञ तैयार करी होगी. यहाँ पे ना ही मान्यता प्राप्त है ना ही सूची है. आपने मान्यता मतलब योग्य आहार विशेषज्ञ बोला ना? हाँ, योग्य है. ओके, मान्यता प्राप्त इज डिफरेंट. तो आपके वजन के लिए यहाँ से योग्य आहार विशेषज्ञ द्वारा
तैयार किया हुआ प्लान मतलब तैयार किया हुआ प्लान दिया जाएगा। प्लान तो रीत नहीं। अच्छा, यहाँ से करते हैं, प्लस अ बोनस। प्लस बोनस मतलब लाभ होता है, तो ओके प्लस अ बोनस मतलब इसके अलावा अतिरिक्त लाभ। ओके। इसके अलावा अतिरिक्त लाभ रूप आपको एक योग्य आहार विशेषज्ञ द्वारा प्राप्त आहार की सूची आहार की सूची दी जाएगी। चार्ट। चार्ट। इसके अलावा एक योग्य आहार विशेषज्ञ आपको आहार चार्ट देंगे, या आपको इसके अलावा, ऐसे आप इसको बहुत सारी तरीके से आप फ्रेम कर सकते हो, या इसके अतिरिक्त लाभ के तौर पर आपको एक योग्य आहार विशेषज्ञ से एक आहार चार्ट मिलेगा। चलो नेक्स्ट। यह बहुत अच्छा है। मुझे यह प्रस्ताव सबसे बेहतर लगा। मैं अभी आपको भुगतान कर देती हूँ, पर शुरू मैं भारत से वापस आने पर ही करूंगी। That's very good. I like this one. I will pay it now, but I will join it after once I come back from India. ओके, इसमें आपका बाकी सब सही था, सिर्फ मुझे यह प्रस्ताव सबसे बेहतर लगा। आई फाइंड दिस ऑफर टू बी द बेस्ट वन। Okay. ओके, बट इसके अलावा बिल्कुल सही था। चलो नेक्स्ट। Sure. To enroll you, I need a couple of your personal details, including name, phone number, and address. Once the registration is done, you will get an electronic access card, which you can use to enter the gym. ठीक है, मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत जानकारियां चाहिए, जैसे कि आपका पूरा नाम और मोबाइल नंबर। इसके बाद आपको एक कार्ड दिया जाएगा जिससे आप इस सुविधा का लाभ ले आप यूज कर सकती हैं। टू मेनी वर्ड्स मिसिंग। ओके, चलो। श्योर टू एनरोल यू, सिर्फ यहीं तक का करना है। ठीक है आपको आपको बताया था जब आप कॉलेज में एनरोल नामांकन। हम्म, ठीक है, आपका नामांकन के लिए मुझे आपसे कुछ बस यहीं तक करना है, जितना मैं बोलूं उसका ही आप करो, ठीक है। अब नेक्स्ट, आई नीड अ कपल ऑफ योर पर्सनल डिटेल्स इंक्लूडिंग नेम, फोन नंबर एंड एड्रेस। अब मुझे आपसे कुछ आपकी व्यक्तिगत जानकारियां चाहिए, जैसे कि आपका नाम, आपका नंबर और आपके फोन की डिटेल, आपका फोन नंबर, नहीं, आपका नाम, नंबर। अच्छा, उसने बोला इंक्लूडिंग नेम, नाम तक तो आपने सही कहा। उसके बाद फोन नंबर मतलब संपर्क संख्या, ओके और एड्रेस मतलब पता। ओके। मुझे आपका नाम
पता और संपर्क संख्या चाहिए। वेरी गुड। अब इसके बाद का जो मैं बोलूं फिर वो करना। वंस द रजिस्ट्रेशन इज डन, बस इतने का ही करना। एक बार आपका पंजीकरण होने के बाद गुड। यू विल गेट एन इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कार्ड। आपको एक विद्युतीय सेम 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 रहेगा। ओके इलेक्ट्रॉनिक कार्ड दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कार्ड, एक्सेस मिस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कार्ड मिलेगा which you can use to enter the gym. जो आप जिम में एंटर करने के लिए यूज करोगे। एंटर का तो हिंदी आना चाहिए आपको। आपको यहाँ पे अंदर आने के लिए। यस, जिसका उपयोग आप व्यायामशाला के अंदर आने के लिए कर सकते हैं। जिम को व्यायामशाला। ओके। अब हम इससे रिलेटेड वोकैब्स करेंगे। ओके ओके। एक्चुअली, ठीक तौर पे, वास्तव में, इंफॉर्मेशन, माहिती। क्या चीज? माहिती नहीं, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। ओके जान। ओके, जिम, व्यायाम केंद्र, व्यायालय। व्यायामशाला। ओके। ओके, एडमिशन, एनरोलमेंट। एडमिशन और एनरोलमेंट में नामांकन, एनरोलमेंट, एडमिशन। आप कोई भी एडमिट होता है, एडमिट मतलब दाखिल करना, दाखिल होना। यस, दाखिला या प्रवेश। ओके, प्रोसेस, प्रक्रिया। यस, इफ, हाँ इफ, शायद, नो, यदि, ओके। एडवाइस, सलाह देना, सलाह, सलाह। ऑब्वियसली, ठीक तौर पे, जाहिर है, ओके। ईयरली, वार्षिक, वार्षिक, डायरेक्ट डेबिट, सीधे तौर से निकलना, भुगतान, ओके। सीधे तौर पे भुगतान, या सीधा भुगतान, पर डे, हर दिन, हर रोज, हाँ हर दिन हर रोज। वेरी गुड। कॉस्ट इफेक्ट, कॉस्ट, कॉस्ट Cost. इफेक्टिव, किफायती। वेरी गुड, किफायती। ओके, ऑफर, प्रस्ताव, यस, लिमिटेशन, लिमिटेशन, सीमा, सीमा, एक्सरसाइज,
व्यायाम, Yes. Cancel. प्रतिबंधित, इतने मुश्किल वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? कैंसिल मतलब रद्द. रद्द, ओके, या खारिज, खारिज कर देना. ये इजी Okay. है ना. बेस्ट. सबसे अच्छा, वेरी गुड. एक्सेस. आप यूज कर सकते हैं, आप उपयोग कर सकते हैं, नहीं, उपयोग मतलब यूज होता है. एक्सेस मतलब पहुंच. ओके, इट कैन बी एक्सेस्ड बाय पेडेस्ट्रियन. ओके, एक्सेस मतलब पहुंच. एवरीथिंग. सब कुछ, मिडिल ऑफ. मिडल ऑफ, हाँ, मिडिल ऑफ समथिंग. दौरान, वेरी गुड. दौरान या बीच में. इंस्ट्रक्ट. समझाना, समझाना या सीख देना. करेक्ट. लवली. बढ़िया, वेरी गुड. स्टार्ट. शुरू, या. इंस्ट्रक्टर. इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक, वेरी गुड. प्रशिक्षक. पर्सनल. निजी, निजी. गाइड. गाइड, सलाहकार, नो. गाइड, समझाने वाला, हाँ, समझाने. मार्गदर्शक ओके, या समझाने वाला भी बोल सकते हो. ओके. डाइटिशियन. आहार विशेषज्ञ, ओके. क्वालिफाइड. योग्य, या. डाइट चार्ट. आहार चार्ट, और डाइट चार्ट भी लिख सकते हैं, आहार चार्ट. करेक्ट. करेक्ट था. ओके. वैलिड. वैलिड, You should have a valid reason to cancel your exam. आपके पास कोई पुख्ता, Valid मतलब सच्चा, प्रामाणिक, वैध. Okay. Muscles. मांसपेशियां, मांसपेशियां. मांसपेशियां. Weight. वजन, Very good. Well done. Funny. मजाकिया, मजाक है. चलो, all good. सारे वो हो गए. Dialogue. Word meanings. Okay, we'll. आप ये एक बार मेरे को भेज सकते हो, ये जो डायलॉग की स्क्रिप्ट है? Actually, we are not allowed to share. Okay. बट आप ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, बट फिर भी मैं एक बार डबल चेक कर लूंगी. मैं आपको बताऊंगी. ओके, ठीक है, थैंक यू. थैंक यू. चलो फिर. ओके, ओके, बाय.